36 and 27. So this is your exercise 10A, question number 10A part. मैंने A part की डायग्राम ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं इसमें दो अननोन है, एक ए है और एक बी. सबसे पहले एंड ई. आप जिस तरह से मर्जी नेमिंग स्टार्ट कर लें, अपने नाम के इनिशियल से भी स्टार्ट कर लीजिए, RABIA. अपने नेम नाम के लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना, और इसमें एज इट इज जो है ना कोई इशू वाली बात. So first of all, I'm going to take my triangle. Okay, there are right angles also given. This is the right angle and there is two right angle triangle. ये एक right angle है और ये एक right angle है. Pythagoras theorem is only applicable to right angle triangle. So make sure that whenever you are taking any triangle, it should be right angle triangle if you want to use Pythagoras theorem. So first of all, I'm going to take my triangle ABC. I'm going to take this my right angle triangle. In triangle ABC, अब ट्रायंगल ACB में जो आपका AC है ऑपोजिट टू 90 डिग्री AC. अब AC का जो इतना सा पार्ट है, दिस इज A एंड द लोअर वन इज 2A. सो कंप्लीट लेंथ आपके पास हो जाएगी 3A एंड दिस इज कंसिडर एज योर हाइपोटेनस. दिस लेंथ इज A एंड द लोअर वन इज 2A. तो कंप्लीट लेंथ आपके पास कितनी होगी 3A और ये 90 के ऑपोजिट है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी. BC, दिस BC we consider this BC, ये 36 सेंटीमीटर है और हम इसको परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हैं. This AB is 27. AB is 27, which is considered as base. Now I'm going to apply Pythagoras theorem on this triangle, that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. हाइपोटेनस आपके पास आ जाएगा 3A स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है 36 एंड योर बेस इज 27. 3A का स्क्वायर हो जाएगा 9A स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 36 स्क्वायर. मेरे पास 36 का स्क्वायर आ गया 1296, while the square of 27 is 729. Now I'm going to add them. After addition I got 2025. Because this 9 is being multiplied with the variable on the other side, it will be divided 2025 divided by 9. A square की value आ जाती है 225. Now I'm going to take the square root on both sides. Yes. जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 15. A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15. अभी तक हमने A की वैल्यू निकाली, अभी तक हमने B की वैल्यू नहीं निकाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन द ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC में ये पूरा आपके पास हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड B. पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है मैंने. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 3A square is equal to 36 square plus 27 square. 3A square is 9A square. Square of 36 is 1296. प्लीज अपना माइक ऑफ कर दे. Square of 36 is 1296 while the square of 27 is 729. After adding these two, I got 2025. 9A square is equal to 2025. 9 is being multiplied with the variable on the other side, it will be divided, and after division I got A square is equal to 225. I want to find out the value of A not A square, so taking square root on both sides. After taking the square root I got my value as 15. क्योंकि A आपके पास एक लेंथ है, इसलिए स्क्वायर रूट लेते हुए मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लगाया. Otherwise square root लेते हुए प्लस और माइनस दोनों लाजमी होते हैं. Now I'm going to solve the value for the B. For this I'm going to take the triangle. This is DCE. Right triangle तो मैंने triangle ले लिया है. Triangle DEC. Triangle DEC में जो आपके पास ED है, this ED B centimeter. ED is equal to B centimeter. This is opposite to 90 degrees, so this is considered as hypotenuse. While this EC 60 centimeters is considered as your
perpendicular. EC is equal to 6 triangle लिया, while DC A सेंटीमीटर, आपके पास DC है A सेंटीमीटर और A की वैल्यू हमने निकाली है फेस लेयर में. जो आपके पास ED था that was B सेंटीमीटर, जो आपके पास DC था this was A और A की वैल्यू 15 आई है, this is considered as base, while EC 60 centimeter is considered as perpendicular. So in triangle EDC, by applying Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Your hypotenuse is B, so B square and your perpendicular is 60, while your base is A. So B square is equal to the square of 60 is 3600, A square which means 15 square, B square is equal to 3600, square of 15 is 225, B square is equal to 5283. After taking the square root of 3800, ऊपर करिएगा. लेट ज्वाइन किया आपने, हमने 5 मिनट वेट किया, आपका पता है. क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म. मेरे पास बी की वैल्यू है 61.84. मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ. दिस वाज योर एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 10A पार्ट. यहाँ के पास A पार्ट था. फर्स्ट ऑफ ऑल शेप ड्रॉ करने के बाद हमने इसके एजेस को नेम दिया A, B, C, D एंड E. ये शेप मैंने ड्रॉ की थी, इसको मैंने नेम दिया जी A, B, C, D एंड E. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन द ट्रायंगल A, B, C. ये राइट एंगल ट्रायंगल लिए. इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑपोजिट टू 90 ये कंप्लीट लेंथ, ये 2A और A दोनों ऐड हो गए हो जाएंगे 3A. इसका मतलब AC पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 3A. While this BC is 36 centimeter considered as your perpendicular, AB 27 centimeter is considered as your base. तो हमने ट्रायंगल ABC में AC 3A हाइपोटेन्यूज है, BC 36 परपेंडिकुलर है और AB 27 बेस की है. आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद बस A की वैल्यू आ जाती है 15. उसके बाद वी वेंट टू द अनदर राइट एंगल ट्रायंगल EDC या DCE, जो भी आप लिखना चाहें. 90 डिग्री का ऑपोजिट ED जो है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. EC 60 सेंटीमीटर इज कंसीडर्ड एज योर परपेंडिकुलर, while DC 8 centimeter is considered as your base. तो ट्रायंगल EDC का सारा हमने डाटा लिख लिए. A की वैल्यू 15 है, फिर उसको हमने क्या लिया बेस is 61.84. क्योंकि दो ही अननोन थे A और B, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई है. मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ इसको, ताकि अगर आप में से किसी ने पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें. अगर आप लोग फोन यूज कर रहे हैं या आपके पास लैपटॉप में विंडो 10 है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. टीचर ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और कर दें. 2 पार्ट्स में करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे. यस. ओके. यस. Okay, now I'm going to start your question number 10B part. This is the shape of question number 10B part. ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10B पार्ट. इसकी फिगर देखिए जरा. Okay, this is the shape. ये आपके पास शेप है जैसी बुक में ड्रॉ हुई है. 3C 4C 39 25 एंड D. सेंटीमीटर खुद लगा लीजिएगा, चले लगा देते हैं. अभी इस 3C और सेंटीमीटर्स में देखें, जो उन्होंने 3C और 4C लिखा है ना, उसमें C का फॉन्ट उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है. तो ये फर्क आप ध्यान में रखिएगा.
जब मोस्टली जब आपको पेपर कंपोज हुआ आता है ना, उसमें ये 3C और 4C और सेंटीमीटर के इसमें आप लोगों को फर्क नहीं पता चल रहा होता। तो जो बुक में इसको ध्यान से देख लें कि ये कैसे लिखा हुआ है, तो आपको जो पेपर आएगा कंपोज हुआ उसके अंदर भी ऐसे ही होगा, तो जरा ध्यान रखिएगा। फातिमा, आपका माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर दें। Okay, first of all, I'm going to name the edges. Edges को name देना start करें. A, B, C and D. चार vertices थे, मैंने चार को जो है वो naming कर लिए A, B, C and D. First of all, I'm going to take the triangle A, B, C, the bigger triangle. Triangle A, B, C. 90 डिग्री, ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल बने ली है, पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल. 90 के ऑपोजिट आ जाएगा हाइपोटेनस, which is BC. So BC equal to 39 centimeter is considered as your hypotenuse, while your AB 25 centimeter is considered as your base. AB equal to 25 centimeter is considered as your base, while your AC, ये 3C है, ये 4C है, टोटल लेंथ कितनी होगी 7C. तो AC equal to 7C centimeter is considered as your perpendicular. So by applying Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse आपके पास है जी 39, 39 square is equal to perpendicular is 7C square and base is 25 square. Okay, now we want to take the square of 39. 39 square is 1521. 7C square is 49C square. Square of 25 is 625. The square of 39 is 1521. 7C square is 49C square. And the square of 25 is 625. 1521 minus 625 is equal to 49C square. 1521 minus 625. 896. 896 is equal to 49C square. 896 divided by 49 is equal to C square. मैं यहाँ से डिवाइड किए बगैर, जी जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज. अच्छा. बिलाल अतीक कभी ज्वाइन किया यस. आपने? बिलाल अतीक प्लीज अपना कैमरा. बिलाल लेट ज्वाइन न किया करें, मैथ्स में आधा सवाल के बाद ज्वाइन करते हैं. ये इंग्लिश तो नहीं है जो आपको दरमियान से पता चल जाए कि क्या हो रहा है. So I want to find out the value of C. So I'm going to take the square root. आपकी मर्जी है, आप डिवाइड करके डेसिमल में ले लें, फिर स्क्वायर रूट ले लें या पहले ले लें. तो मैं आपकी आसानी के लिए पहले इसको डिवाइडेड बाय 49 कर देती हूँ. जो आंसर आया है 18.285 is equal to C square. बाद स्क्वायर रूट ले, बाद में इसका ले लें. स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर आपके पास आ रहा है जी 4.27 is equal to C. ये आपके पास आई है C की वैल्यू. कैलकुलेशन जरा दोबारा से चेक कर लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज योर शेप. आई हैव नेम्ड दिस एज A, B, C and D. This is your exercise 10A question number 10B part. It's on my page number 268. ये आपके पास क्वेश्चन था. मैंने इसके एजेस को नेम दिया जी A, B, C and D. First of all, I have taken the triangle ABC. 90 के opposite पर hypotenuse 39 centimeters. AC, this length is 3C and 4C complete is which is 25. After applying Pythagoras theorem, hypotenuse is 39, perpendicular is 7C and your base is 25. The square of 39 is 1521, 7C square is 49C square, 25 square is 625. ये ऐड हो रहा है, इसको दिला के सब्ट्रैक्ट करें. आफ्टर सब्ट्रैक्शन 896 49 मल्टीप्लाई दिला के डिवाइड करें. मैंने पहले डिवाइड किया उसके बाद स्क्वायर रूट लिए.
आप स्क्वायर रूट ले लें अलग अलग, फिर डिवाइड कर लें, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास सी की वैल्यू आई है 4.27, क्योंकि सी एक लेंथ है इसीलिए मैंने उसको प्लस और माइनस नहीं लिखा, अदरवाइज जब आप स्क्वायर रूट लें तो प्लस और माइनस लगाना लाजमी है। Now I want to find out the value of this d, मुझे ये d की वैल्यू चाहिए। For this I am going to take this triangle ADB। याद रखें कि जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यू कैन ओनली टेक राइट का। जब भी आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना हो तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल ही लेनी है। सो इन ABC I'm going to take this right angle triangle ABC है आपके पास में, ये right angle triangle ले रही हूँ। In triangle ABD opposite to 90 degree this D, opposite to 90 degree which is BD equal to D centimeter is your hypotenuse, while AD जो कि आपके पास 4C है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर। AD आपके पास कितना है 4C, सो 4C सेंटीमीटर ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, और AB तो वही which is 25 सेंटीमीटर which is considered as your base। सो ABD के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं, जरा देखें। टीचर इनकी वैल्यूज एक बार दिखा दें। दिस इज योर शेप और ये वैल्यूज लिखी है मैंने। ओके Okay, now I'm going to apply Pythagoras theorem। Pythagoras theorem आपके पास होता है hypotenuse square is equal to the square plus base square। hypotenuse है जी आपके पास D square perpendicular है and you 5 D square वैसे ही 4C square is 16C square, the square of 20 is 125। D square is equal to 16, C की वैल्यू आपके पास है जी 4.27 plus 625, C के ऊपर स्क्वायर भी है। D square is equal to 16, first you will take the square root it 285 plus 625 to 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 18.285 multiplied by 16, D square is equal to 292.56 plus 625, after adding D square is equal to 917.56 after taking the square root, तो D की वैल्यू आपके पास आ जाती है 30.29। मैंने सिर्फ 2 डेसिमल तक के आंसर लिखना होता है, अगर आपको लगे कि पीछे से आंसर मैच नहीं है तो शुरू से ही राउंड ऑफ कर लिया करें। मैं राउंड ऑफ करती नहीं हूँ, लेकिन आपने अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ठीक नहीं आएगा तो आप राउंड ऑफ करके चल लिया करें, दो बातें बिल्कुल ठीक है। अब जाके आपका सवाल कंप्लीट हुआ है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10B पार्ट। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज ले लें। टीचर वो पिक्चर बहुत ब्लर आ रही है। चले सेक्शंस बना लें। ओके अभी भी वैसी है। Okay, next I'm going to start your question number 10 C part। C part थोड़ा लेंथी है
तो साथ साथ चलिएगा, मैं क्वेश्चन के एंड पे इसकी रिवीजन नहीं करवाऊंगी, थोड़ा लेंथी है। हमने जी टीचर आपने जब 4.27 का स्क्वायर लिया था तो आपका आंसर आ रहा है 18.285। अच्छा जी। और टीचर मेरा आ रहा है 18.2329 आ रहा है। जो आपका आ रहा है वो लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन का इशू नहीं है। ओके ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सी पार्ट। थोड़ी डिफिकल्ट सी डायग्राम है, मुझे जरा 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको ड्रॉ कर लूं। ओके, दिस वाज योर शेप। इसमें आपके पास अननोन आ रहे हैं 5E अननोन है, F है और 4E अननोन है। ये आपके पास शेप है 22, 27, 32। पहले इसमें राइट एंगल, एक तो ये राइट एंगल है, एक यहाँ राइट एंगल है और एक ये, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल। नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, A, B, C, D और E। सबसे पहले मैं लेने लगी हूँ ट्राइंगल, साथ साथ सुन ली, नोट रिपीटेड। ABC ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ABC। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 सी पार्ट। ट्राइंगल ABC ले लें, 90 के ऑपोजिट आ जाएगा 32, which is your BC equal to 32 centimeter is considered as your hypotenuse, and AB equal to 27 centimeter. AB equal to 27 centimeter is considered as your, अपनी मर्जी से ले सकते हैं आप। Okay, now going to apply Pythagoras theorem that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus 32 square is 1024, while square of 27 is 729, 16E square. 1024 minus 729 is equal to 16E square. 1024 minus 729, आपके पास आ गया 295 is equal to 16E square. 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर लाकर डिवाइड करा दें, डिवाइडेड बाय 16। हाँ, मेरे पास आ रहा है जी 18.437 आ रहा है, मेरे पास 437 है, मैं इसको 44 करने लगी हूँ राउंड ऑफ करके। 18.44 is equal to E square. Now I am going to take the square root. Square root of 18.44, मेरे पास है जी 4.29, 4.29 is equal to E. इतने से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। First of all, I have taken the triangle ABC opposite to 90 degree. 32 is your hypotenuse, 4E is your base, and 27 is your perpendicular. After applying the Pythagoras theorem to the 32 square is equal to 27 plus 4E square. The square of 32 1024. The square of 27 729. And the square of 4E is 16E square. After subtraction 295. After division 18.44. And after taking the square root, you get the value of E to be 4.29. इसका screenshot ले ले। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रायंगल। अब मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, मेरे पास ई की वैल्यू है, मुझे एफ की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू है, ये चाहिए, उसके लिए मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ नहीं गिवन, सवाल में मुझे ये नहीं गिवन। इसकी लेंथ 15 है। इसकी लेंथ कितनी है? 15। कहाँ लिखा हुआ बुक में? बुक में नहीं, मैंने सॉल्व किया। हमें भी सॉल्व करने देना। This is 27, 22. I want to find out this value AD. मुझे AD निकालना है, so I'm going to take the triangle ABD.
So right angle triangle ही है. In triangle ABD, opposite to 90 degree 27 AB. AB is equal to 27 centimeters considered as your hypotenuse. While AD, this AD, I'm going to name this AD as X. इस AD को मैं X का नाम दे रही हूँ. I will take this AD as my base. So AD equal to X is considered as my base. आखिरी लेंथ आपके पास आ जाती है DB, which is 22 centimeter. I'm going to take it as my perpendicular. So by applying Pythagoras theorem to this triangle, that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. हाइपोटेनस आपके पास आ जाता है जी 27 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है जी 22 स्क्वायर, एंड योर बेस, व्हाट इज योर बेस? x स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 27, 729 is equal to square of 22, 484 is equal plus x square. 729 minus 484 is equal to x square. 729 minus 484, 245 is equal to x square. 15 तो नहीं आ रहा. 15.5 equal to x. Let me check my calculation again. 27. I didn't get my length as 15. Who told me कि length 15 है? मेरे पास 15.65 आ रही है. Okay, next I want to find out the value of this s. So I'm going to take the triangle ADE. Triangle ADE. Triangle ADE के ऊपर जब आप टीचर मुझे नजर नहीं आ रहा, आप बोल दें. 15. मेरे पास लेंथ आई है 15.65. Okay. Okay, now I'm going to take the triangle ADE opposite to 90 degree, which is DE is equal to 5E considered as your hypotenuse, while AD equal to X जिसकी हमने वैल्यू निकाली है जी 15.65 is considered as your base, और लास्ट पे आपके पास आ जाती है AE equal to F is considered as your perpendicular. इस डेटा को यूज करके आई होप कि आप सब f की वैल्यू खुद निकाल लें. सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यू खुद फाइंड आउट कर लेंगे. जस्ट प्लीज से यस और नो. Yes. यस. ये डेटा यूज करना है और आपने पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू जो है वो खुद से निकालनी है. अब आपकी असाइनमेंट की बारी आ गया. असाइनमेंट जरा आपने सुन ले. थोड़ी लंबी सी असाइनमेंट है लेकिन आपने करनी है. ये डी पार्ट आपको नजर आ रहा होगा आपकी बुक में. गौर से सुनते जाइएगा. पहली बारी में समझ आ गया तो आ गया, अदरवाइज मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगी तो आप सब कंफ्यूज होंगे. दिस इज योर एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट. ओके, गौर से सुनिएगा और दरमियान में टोकिएगा नहीं. आपने इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन है जी. जी की वैल्यू तभी आ सकती है अगर ये 7 आपको पता है, 7 अगर ये वाली लेंथ पता हो तो तभी जी की वैल्यू आ सकती है. ये लेंथ पता होने के लिए 7 के साथ ये लेंथ चाहिए जो कि नहीं है. ये लेंथ पता लगाने के लिए 7 के साथ ये लेंथ चाहिए जो कि नहीं है. इस लेंथ को सबसे पहले आप निकालेंगे. सबसे पहले एजेस को नेम दें सारा. 35 और 7 को यूज करते हुए ये लेंथ निकाले कैपिटल ए. 35 और 7 को यूज करते हुए कैपिटल ए लेंथ निकालें. उसके बाद इसके लोअर ट्राइंगल पे आ जाएंगे. इस ए और 7 को यूज करते हुए ये वाली लेंथ कैपिटल बी निकालेंगे आप. सॉरी,
सबसे पहले आप इस 35 और 7 को यूज करते हुए ये वाली कैपिटल ए लेंथ फाइंड आउट करेंगे। 7 और ए को यूज करते हुए ये लेंथ यूज करेंगे कैपिटल बी। 7 और कैपिटल बी को यूज करते हुए ये कैपिटल सी लेंथ निकालेंगे। सी और दिस 7 इन दोनों को यूज करते हुए फिर जाके आपके पास जी की वैल्यू आएगी। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो कि आपने इसमें 3 से 4 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो जाके आपके पास जी की वैल्यू आएगी। सबसे पहले 7 और 35 जी टीचर ये लेकिन हमें दो वैल्यूज तो पता होनी चाहिए ना। दो वैल्यू 7 और 35 की पता है इसलिए ए निकाल सकते हैं ना हम। ओके 7 और 35 को यूज करते हुए ए की वैल्यू निकालें, फिर इस ए और 7 को यूज करते हुए बी की वैल्यू निकालें, फिर इस बी और 7 को यूज करते हुए सी की, फिर इस सी और 7 को यूज करते हुए फिर जाके आपके पास जी की वैल्यू आएगी। तो दिस डी पार्ट इज योर होमवर्क। ये एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट इज योर होमवर्क। इसमें 3 से 4 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तब जाके आपका सवाल खत्म होगा। आई होप कि आप सबको समझ आ गया हो कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है। यस आज के सेशन से मतलब कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ लें। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। अब्दुल रहमान का कैमरा ऑन नहीं है। एक्सक्यूज मी टीचर एडवांस लेवल नहीं है? नहीं एडवांस लेवल नहीं करना। ठीक अब्दुल रहमान अपना कैमरा ऑन करके बैठे। अलीना फहद कोई टीचर सवाल पूछना? आपके पास लिखा हुआ है तो आप एक बार बी क्वेश्चन की स्क्रीन शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट। यस सेकंड पार्ट बी का। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट। ओके फातिमा। यस जी किसी और ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। अब्दुल रहमान लेट ज्वाइन किया, आपको क्लास समझ में आया? मैथ का काम समझ में आया? क्या काम था? यस टीचर। तो अब्दुल रहमान आप मुझे बता सकते हैं कि आपने प्रीवियस वर्क कितना कर लिया है? अब्दुल रहमान होमवर्क भी करना होता है। होमवर्क के बगैर ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। आपने होमवर्क किया अब्दुल रहमान? कितना होमवर्क किया हुआ आपने? 60 तक कर दिया हुआ। तो ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसका क्या करेंगे आप? मंडे तक बेटे अपना चैप्टर नंबर 10 तक जितना मिसिंग हुआ है उसको कंप्लीट करें। अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछने हैं तो पूछ लें। ईमान, अलीना, फातिमा, फातिमा रहमान। यस टीचर। फातिमा रहमान ने अगर कोई सवाल पूछना तो पूछे। फातिमा रहमान आर यू देयर?